मुंबई दे माया नगरी दे दो पासे ने। जिस जगह ते बैठे आ एक पासा ये आ ते जिस जगह ते पूरी दुनिया दूरों दूरों घूमण लई देखण लई आउंदी आ एक वो पासा। एक चंगे घर दी पढ़ी लिखी कुड़ी इस एरिए च आके बैठी, ਉਹਦਾ कोई कारण है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਉਣੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆਉਣੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। अगर आप उनको मैनर सिखा दो, आप उनको बोलो जो भी जितने भी कपड़े हैं आप साफ सुथरे डालो। ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स ने बचपन में सिखाई हैं, ये सब इतना ग्रूमिंग करने से बच्चों में अमीर और गरीब में कुछ भी फर्क नहीं है। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? इनकी एज में जो इनको फिल्म दिखाओ, इनको घुमाने लेके जाओ, इनकी ग्रूमिंग करो और इनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਰਹੀ मैं? जब हम देते हैं ना, मतलब हम आपको सरदार ने आपको पता है, जब हम देते हैं ना भगवान हमको और बढ़ा के देता है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ होंगे कोई ऐसा बैच निकला ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ जा के कुछ बन रहे ने या तैयारी च ने? उस टाइम जब मैं उनको डांटती हूँ, मारती हूँ, गुस्सा करती तो उनको बुरा लगता है, बट 2-3 साल का उनके स्ट्रगल के बाद उनको रियलाइज हो जाएगी। लेकिन मैं ये देखा भी इस एरिए च आ के जिन्ने भी बच्चे आ सारिਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ आई कार्ड बना के पाया, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਐਂਡ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਰ ਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ? ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਦਾ। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं हूँ किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸ਼ੁਰਲੀ। ਮੁੰਬਈ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੌਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਾਚਾ ਨਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ 532 BHK ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨ? ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ,
ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ? मजा आ रहा है? मैडम वधिया ने? अच्छे हैं? मैडम के लिए क्लैपिंग कर दो फिर। सो ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਆ, ਢੰਗ ਕੀ ਆ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੰਦਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਮੋਰਾਚਾ ਨਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਐਡੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਵੰਦਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧਾ ਪੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ, ਸਿੱਧੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਬਈ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। मैम सत श्रीकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्रीकाल जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ कि पंजाब से मुंबई में आए हैं आप और इंटरव्यू लेने के लिए, जो हमारे इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करवाने के लिए कि हम क्या काम करते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैम ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ, ਪੈਰੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ।
ਪਰ ਮੈਡਮ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕਾਪੀਆਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਟੀਕੇਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾत। तो मोस्टली क्या होता है जब भी एनजीओ की बात आती है या कोई सोशल वर्क की बात आती है तो सब लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो शैबी होने चाहिए, गंदे होते हैं, मैनर्स नहीं होते हैं। बट मुझे ये लगता है अमीर और गरीब में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर आप उनको मैनर सिखा दो, आप उनको बोलो जो भी जितने भी कपड़े हैं आप साफ सुथरे डालो, आप नेल्स अपने कट करो अच्छे से। बाल में इन सब लड़कियों को बोलती जब भी आप क्लास में आते हो तो आपकी पोनी होनी चाहिए, बुत होनी चाहिए, ऐसे नहीं आना है। ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो वो हमारे पेरेंट्स ने बचपन में सिखाई हैं, ये सब इतना ग्रूमिंग करने से बच्चों में अमीर और गरीब में कुछ भी फ़र्क नहीं है। और दूसरा मेरा मेन जो मोटिव है वो एजुकेशन है। अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दिया तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। जैसे एक अमीर और गरीब का कोई एक लेवल नहीं होता है। अंबानी जी हैं, उनके नीचे सब गरीब हैं, है ना। अब हम हैं, हमसे आगे बहुत अमीर हैं। अमीर और गरीब का कुछ नहीं होता, बस उनको सलीका सिखाना है, पढ़ाई शिक्षा देनी है, तो आगे जिसको निकलना है वो बच्चा निकल ही जाता है। तो दिस इज द थॉट ऑफ द एनजीओ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, किद्दां? क्योंकि मैं खुद हिमाचल से आई हूँ और मैंने खुद कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स तो देखे ही हैं। तो जब मैं अच्छी टचवुड अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ अपने घर में तो कुछ देखा नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल देखा। तो मुझे लगा, और यहाँ मैंने मुंबई में बहुत स्लम्स देखे हैं, हमारे उस तरफ इतने स्लम्स होते नहीं हैं। तो मेरी जो मेट थी और मेरा ड्राइवर था, मैंने उन बच्चों से स्टार्ट किया पढ़ाना। फिर मुझे लगा कि अगर मैं 4-5 बच्चों से शुरू किया, बच्चे बढ़ते गए। तो मैं पहले घर पे कराती थी, तो 30-35 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 3-4 साल तक तो मैं खुद ही पढ़ाती रही। मुझे लगा कि हमारे हिमाचल में म्यूनिसिपल स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वहाँ पे एजुकेशन डिसिप्लिन सब कुछ सिखाया जाता है। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा लैक लगा कि बच्चे गालियाँ देते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गालियाँ देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं। अभी भी मतलब यहाँ पे आप दिन में देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे खेल ही रहे होंगे, बट हिमाचल में ऐसा नहीं होता है। तब मुझे लगा कि इनको जब तक इंग्लिश मीडियम में नहीं डालेंगे ना तब तक ये इम्प्रूव नहीं होंगे। तब से मैंने फिर फीस कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और धीरे धीरे जो अच्छे कैपेबल बच्चे उनको खुद पढ़ाना शुरू किया, सो दैट यू नो अपलिफ्टमेंट तभी होगा। मैं ये नहीं बिलीव करती कि बच्चों को आप राशन दो, खिलाओ पिलाओ, वो सब नहीं करना चाहिए। इनकी एज में जो इनको फिल्म दिखाओ, इनको घुमाने लेके जाओ, इनकी ग्रूमिंग करो और इनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। ये 4-5 चीज़ें हैं जो इनकी नेसेसिटी है, उसी पे मैंने फोकस किया। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ मैं ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਰਹੀ मैं, अपने बारे क्यों नहीं सोच रही? नहीं, एक्चुअली जब हम देते हैं ना, मतलब हम आप तो सरदार हैं, आपको पता है, जब हम देते हैं ना भगवान हमको और बढ़ा के देता है। तो मैंने जितना दिया मुझे भगवान ने उससे डबल ही बनाया। भगवान ने आपको एक का डबल दिया है। और मेरे को मेरी सक्सेस रेट भी ये सब काम करने से ज्यादा ही हुई है, कम नहीं है। तो मुझे तो कोई कभी ऐसा फील नहीं मैं क्यों कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं यूजुअली जब मैं आई थी तो मैं रिक्शा में नहीं बैठती थी, मैं कभी ऐसे ट्रैवल नहीं करती थी। बट इन सब बच्चों के साथ मैंने ये सारी चीज़ें देखी और मेरे को लगा कि अगर इस तरह से कर रही हूँ ना, तो अगर ये अपलिफ्ट हो जाएंगे तो हम सब लेवल के हो जाएंगे। तो मेरे को धीरे धीरे ठीक लगा कि नहीं करना चाहिए। और अगर हम पिज्ज़ा हट भी चले जाएं या डोमिनोज कहीं पे भी चले जाएं, हम 2-3 हज़ार तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। वही 2-3 हज़ार मैंने सोचा कि सब बच्चों को कुछ खिला दूँ, तो वो कंट्रीब्यूशन वैल्यू की जो मनी है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली अकेले खाने से। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 2011 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ?
हाँ जी, काफ़ी मैक्सिमम जो मेरे पहले मैं वर्सोवा में रहती थी, जी। तो मैं वर्सोवा में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बीकॉम वाह। और बीएससी, इस तरह के स्टूडेंट्स हैं और वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो जिनके घरों में मम्मी मेड होती थी, फादर ड्राइवर होता था और घर के में बच्चे बहुत हैं, हालत ख़राब होती थी, उन्हीं घर में एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है या पढ़ा लिखा लड़का है, तो उनका फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व हो गया। अभी तो यहाँ से भी काफ़ी बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं। मेरा तो मन है कि नीट करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बट वो कम होते हैं, बट एटलीस्ट दे आर गेटिंग ग्रेजुएटेड, वो भी बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसे बच्चे आपको दोबारा मिलने आए कि मैम आपने हमें अच्छे रास्ते पे लिया था, आज हम कामयाब होने वाले हैं या हो चुके हैं? हाँ, ऐसे हैं काफ़ी बच्चे जिनको उस टाइम जब मैं उनको डाँटती हूँ, मारती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तो उनको बुरा लगता है, बट 2-3 साल का उनके स्ट्रगल के बाद उनको रियलाइज़ हो जाएगी, दीदी आपकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो वो खुद भी टीचर, कुछ टीचर भी बने हैं बच्चे, कि हम नौकरी कर रहे हैं, सो दे आर वेरी थैंकफुल। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में जितने भी उन्होंने ट्रिप्स किए हैं, जैसे वैष्णो देवी या फिर जितने भी हम त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर है, मैंने जितने भी ट्रिप्स कराए हैं, इवन हिमाचल में भी मैंने ट्रिप्स कराए हैं, तो उन्होंने वो ही ट्रिप्स अटेंड किए थे, यू नो, या फिल्में भी हमारे मेरे साथ ही देखी हैं। तो जो उनका चाइल्डहुड था वो काफ़ी प्रॉस्परस रहा है, तो बहुत ही वो थैंकफुल तो होते हैं। अच्छा, एक ਤੁਸੀਂ ਡੌਗਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੀ प्रोसेस ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। तो जैसे एनिमल्स, जानवरों को ना हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते। बिल्कुल। जो बच्चे जो होते हैं छोटे, उनको कुछ नहीं पता है उनको लाइफ में कहाँ जाना है, और जानवर हैं वो अपनी, उनको भूख लगी है या उनको कुछ तकलीफ है, वो बता नहीं सकते। और हमारे हिंदू धर्म में तो यही बोला जाता है कि जो हेल्पलेस है उसी की हेल्प करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रिश्तेदारों में गिफ्ट बांटने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ हम अगर वो पहुँचाते हैं तो वो ही एक्चुअल सोल्यूशन होता है। तो इसीलिए मेरे को जानवरों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार पहले से ही था, बचपन से ही था। हमारे घर में डॉग्स रहे ही हैं, मेरे डैड भी एनिमल लवर हैं, तो वो पहले से कनेक्शन था। बट स्ट्रे डॉग्स का नहीं इतना आइडिया था, बट मुझे लगा कि मुंबई में स्ट्रे डॉग्स की हालत बहुत ख़राब है, तो मैंने ये 2015 से हेल्प करना शुरू किया। कितने डॉग्स का कर चुके हो आप? डॉग्स तो अभी आज लिमिटेड हो चुके हैं। अभी तो कोई एक मुझे याद है डॉग था जिसको ये कैंसर था, तो उसको कीमोथेरेपी देने के लिए देनी पड़ती थी। अच्छा। तो उसको 6 महीना रहा हो, मैंने एक रेस्क्यू सेंटर में उसको रखा, एक्सपेंस सारा तो पूरे 6 महीने में मेरे ख्याल से 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। बट वो इतने अच्छे से वो डॉग रहा, पेनलेस, उसको फूड मिल रहा है, उसकी केमोज हो रही है, वो कैब में जा रहा है। सो इस तरह के केसेस भी हमने, इनफैक्ट जो मेरे वॉलंटियर्स हैं वो भी अब दवाइयाँ खिला लेते हैं, डॉग्स को इंजेक्शन लगा लेते हैं, सब ट्रेंड हो गए। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ भी नहीं चलता। एक्चुअली क्या है, वॉलंटियर्स जो होते हैं ना, एनजीओ में सबको लगता है कि हम महीने में एक बार या साल में 5-6 बार जाएंगे, वॉलंटियरिंग करेंगे, हमारा काम हो गया। तो मैंने, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मुझे लोग बोलते हैं वॉलंटियर बनना है, मैंने उनको लिया ही नहीं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे, फोटोज़ खींचेंगे, हर जगह डालेंगे, काम नहीं करेंगे। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे हैं एजुकेशन में और जो अंडरस्टैंड करते हैं एनिमल्स की पेन, बच्चों को भी समझते हैं, जो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी, उन्हीं को मैंने वॉलंटियर्स बनाया और वो ही सारा मैनेज करते। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ मैं NGO ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ? एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स की फोटो से मैं डालती हूँ। जी जी, बच्चों दी। हाँ, तो मुझे लगता है उनकी फोटो डाल रही है तो सबको पता ही है मैं ही कर रही होंगी। सो ऐसा कुछ अपनी फोटो डालने की मेरे को कोई नीड नहीं है। मेरे को ये लगता है कि शायद ये लोगों की फोटो डालेंगी, वॉलंटियर्स की, उनकी प्रेस करूंगी तो ये आगे बढ़ेंगे, और जिनको पता है काम का वो तो ठीक ही है। अच्छा, ये सारे बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਚ 2 ਦਿਨ 1 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਐਂਡ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਰ ਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਐਨ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਗੀ? मैंने स्टार्टिंग में तो जब मैं स्टार्टिंग में देखती थी कि अच्छे से नहीं रहते हैं, तो एक बार बोला, 2 बार बोला, मुझे डांटना शुरू करना पड़ा। और ग्रेजुअली मैंने मेरे वॉलंटियर्स को बताया कि जो भी बच्चे होने चाहिए नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और शायद बच्चे जो है ना सुन लेते हैं, सुन प्रॉब्लम नहीं होता। सो दे ऑल्सो फील लाइक कि दीदी क्लास में जाना है तो हमको अच्छे से जाना है, अच्छे से तैयार होके आते हैं। अच्छा, इनमें से कोई फेवरेट बच्चा? फेवरेट तो मुझे मेरे वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा बच्चा जो हमें कुछ सुना सके यहाँ पे आके, कुछ ऐसे? स्वाति, अच्छा। 94% उसने स्कोर किया लास्ट। ओह वाओ, कीर्तन भी बहुत अच्छे करती है, भगवान के गाने भी वाह। करती है, और स्पीच भी अच्छा देती है। अच्छा। वेरी गुड। शाइस्ता इज वेरी गुड इन डांस, और पढ़ाई में भी वो अच्छी है। उसके 80+ ही आते हैं। काजल है वो भी। अब ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ। ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟੀਕੇਟਸ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम स्वाति सूर्यभान यादव है। ओके। और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। और क्या बोलते हैं मैं इधर पे संडे क्लास में जो है 4th या 5th स्टैंडर्ड से ऐड हुई हूँ। पहले मुझे नाम की किसी से वो नहीं रहता, मुझे पहले मेरे को ऐसा लगता था कि ये छी कितना गंदा है, इसके पास कोई भी ऐसा कोई गरीब रहता था, मुझे बहुत घिन आती थी, और जानवरों से भी। तो जब दीदी के पास आई तो धीरे धीरे जब मैं इनके साथ रहने लगी, समझने लगी, तो धीरे धीरे अब मुझे कोई भी दिखता था तो मुझे लगता है कि अब मेरे दोस्त है करके। और कोई भी जानवर अगर पेन में होता था, भले मैं अभी मानती हूँ कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकती उनके लिए, पर जहाँ तक है अगर मैं कुछ उनके लिए छोटी मोटी दवाई या फिर डेटॉल वेटॉल कुछ कर सकती हूँ, तो जहाँ तक है मैं अपने उधर से हाँ कैपेसिटी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੰਦਨਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 12 13 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਹੌਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਹੈ, वो बहुत अच्छा है, बहुत वधिया। बेटा कुछ जो आपका अच्छा लगता हो, कोई पोइम है, कोई फ्यू लाइंस हैं जो आप हमें सुनाना चाहें? हाँ, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि पोएम ही सुनानी है, कुछ भी, कोई माई फ्रेंड या कुछ ऐसा जो आपको लगता है वो सुना। कुड़ी सानू अपने पापा ते एक सॉन्ग ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੁਣਾਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ एक वाजिब आ कि तुसी मेहनत कीती हो, दिख रही है। बेटा आउण दो। कि ये गाना उस पर है जब कोई भी बेटी अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा लगा होता है, जब वो विदा होकर अपने घर पे चली जाती है तो वो अपने पापा को क्या बोलती है अपने ससुराल जाने के बाद। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं हूँ किसको बुलाते हो बाबूजी,
क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ने गाया और बहुत बहुत ज्यादा भावुक करने वाला। बेटा ये किसका है, लिखा किसका है ये? वो तो नहीं, मैंने अक्सर मैं मोबाइल देखती हूँ तो कभी कभी ऐसी चीजें मिलती हैं। अक्सर पढ़ती हूँ, तो कभी कभी ऐसा मुझे मन करता है, मैं गाने का बहुत हॉबी है मेरी, गाने का अच्छा, मुझे गाना अक्सर ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी मुझे पप्पा मेरे सबसे अच्छा लगता है कि मतलब कि मेरे को पप्पा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ फिर भी चलेगा। तो पप्पा के मैंने सर्च किया तो मुझे ये गाना मिला तो अच्छा लगा। ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਜੀਤੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। मतलब कि ये वो जो इतने सालों का स्ट्रगल है जो बच्चों के साथ मैंने किया है, मतलब कि उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें सिखाना इतना डिफिकल्ट होता है ना। आई वाज लाइक अब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और जो आने वाले जो मुझे तंग कर रहे हैं, सो आई गेट इरिटेटेड आल्सो विद दैट कि ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। बट ठीक है, ये पूरा इमोशनल जर्नी है 13 साल की, सो वही है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਆ? ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲੋ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, रिश्तेदारां च घूम लिया। ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ करता? नहीं, मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं हिमाचल जाती हूँ, 1 मंथ हॉलीडे लेती हूँ साल में 2-3 बार। अच्छा, फैमिली, मॉम डैड ब्रदर्स वगैरह के साथ, या फिर ट्रिप्स भी आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करती हूँ। जब मतलब काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है तो आई ट्रैवल फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ट्रैवल करती हूँ। तो दैट इज देयर। और मैं कथक भी करती हूँ, दैट इज माय पैशन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ रूटीन्स ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? सो एक्चुअली ऑफिस वर्क तो होता ही है, और साथ में जो मेरे वॉलंटियर्स हैं ना, वो मोस्टली 90% वो मेरे घर पे ही होते हैं। अच्छा, लाइक फीडिंग के लिए खाना ले जाना लाना, फिर उसके बाद शाम को पढ़ने आना, तो रात को 10 बजे वो लोग मेरे घर से जाते हैं अपने घर के। तो पूरा दिन मतलब, और मेरे पेट्स हैं मेरे पास, तो मैं मतलब मेरा घर खाली नहीं होता है। ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। मतलब हिमाचल में और पंजाब में तो लोग अकेले रहते ही नहीं है। सो वही मेरे घर पे भी ऐसा ही है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ जो देना ਉਹ ਸਿੱਧਾ डायरेक्ट ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰੇ। क्योंकि जरूरत ही नहीं है इतना झंझट करने की। जितना हम ज्यादा इसमें घुसेंगे उतना कंफ्यूजन होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो छूट जाएगा और हम दूसरी चीज में, उसके लिए बिजनेस है ना, जो कॉम्प्लिकेशन जो हैंडल करनी है, अकाउंट्स वगैरह, उसके लिए बिजनेस में फोकस। ये तो चैरिटी है। अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਦਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ? ड्रीम, मैंने तो मेरे जितने भी ड्रीम्स है काफ़ी
ऑलमोस्ट पूरे कर ही लिए हैं, बट अभी जैसे मैंने आपको कुमारी माता का जो प्रोजेक्ट बताया है, जी सो मैं एक्सपेक्टिंग कि वो अच्छा चलेगा, वो भी एक सोशल वर्क पे मैंने उस जगह पे काम किया है, प्रैक्टिकली मैंने देखा, उसी पे मूवी बनाई है और अच्छे सब्जेक्ट पे ही मेरे को फिल्में बनानी है। दैट इज माय न्यू विजन। ਅਪਕਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਪੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਚੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। एग्जैक्टली, वैसे मैंने काफी पेजेंट्स जीते हैं, मैंने मॉडलिंग भी की जी। है, काफी सारी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत। और आजकल लोगों को डिप्रेशन होता है मतलब अगर आप काम करते रहेंगे तो डिप्रेशन तो आएगा ही नहीं। लोगों के बीच में रहेंगे, एनिमल्स के बीच में रहेंगे तो डिप्रेशन कैसे आएगा? कितना होगा? आप 4-5 BHK के घर में अकेले बैठे रहेंगे तो डिप्रेशन तो आएगा ही नहीं। तो वो उनका प्रॉब्लम है जो इस तरह से लाइफ जीते हैं। और आप मटेरियल कितना रखोगे, आपको कितनी बड़ी कार चाहिए, आपको कितने बड़े घर चाहिए, आपको क्या मटेरियल कितना आपको चाहिए, मटेरियल से तो आप सेटिस्फाई कभी हो ही नहीं सकते ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ। और आप खुश भी नहीं हो सकते। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵੰਦਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਬੇ ਆ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ भी एक कारण है कोई? नहीं, एक्चुअली मैं तो वेस्टर्न भी डालती हूँ, इंडियन भी डालती हूँ, सब भी डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अपने मॉम डैड की बहुत ज्यादा लाड ले रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से जो भी करती हूँ। ये तो मेरी मर्जी ही है ना, चाहे पेरेंट्स, हर बच्चा जो लाडला होता है अपनी मर्जी करता है। कुछ बच्चे मर्जी में सोचते गलत करने का और कुछ सोचते मर्जी में सही करने का, तो मैंने इस तरह से लिया। तो मैं अपने पहले से ही मैं वेस्टर्न भी डालती थी, इंडियन भी डालती हूँ। इंडियन तो मैंने कथक से, अकॉर्डिंग टू या जाना कितने है हाँ, सिचुएशन। क्लोथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं है आप स्टूपिडिटी नहीं कर सकते। ਨਹੀਂ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ करना? जब मैं फर्स्ट टाइम 2012 या 13 में फर्स्ट टाइम मैं स्लम में गई थी, पहले तो मैं घर पे पढ़ाती थी, जब मैं फर्स्ट टाइम स्लम में गई बरसोल में, आई टेल यू मैं रोती ही रही। अच्छा, मैं सोच रही लोग कैसे रहते हैं इतने छोटे घरों में, इतने 7-7 8-8 लोग कैसे रहते हैं, ये लोग सीरियस क्यों नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, बच्चे लोग क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई कुडंट बिलीव इट, मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। बट मुंबई के स्लम्स की एक खास बात है कि यहाँ पे मिस्चीवियस चीज़ें नहीं होती। मतलब आप सिटी में, मुंबई के मॉल में घूम रहे हो, मुंबई के स्लम्स में घूम रहे हो, यू आर वेरी सिक्योर। जैसे हमारे नॉर्थ में होता है थोड़ा डर लगता है, दिल्ली में थोड़ा डर लगता है, तो यहाँ पे गर्ल्स सेफ हैं। बट जिस तरह की लाइफ लोग जीते हैं वो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग थी। और उसके नेक्स्ट संडे जब मैंने मेरे घर पे क्लास रखी, मैं एक बच्चे के बर्थडे पे गई थी, फिर उसके बाद मैंने संडे को क्लास रखी, तो मैंने उनको इतना लेक्चर दिया कि तुम लोग कैसे रहते हो, तुम लोग अपनी पढ़ाई के बारे में सीरियस क्यों नहीं हो। और पूरी क्लास रोने लगी मैं भी रोने, सब रोने लगे कि दीदी मैं जो लेक्चर दी थी उनको फील हो रहा था। तो मतलब सबको इतना हुआ कि हमको कुछ करना है। तो वो मेरा बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम। मेरा ब्रदर मेरे साथ रहता था, तो वो तो मुझे जाने नहीं देता था कि नहीं मत जा। मैं बोला ठीक है, बर्थडे है। तब मैं स्लम्स से ओपन अप हुई। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मेरा तो काउंटिंग ही नहीं है, मतलब काफी लग जाता है। मैंने आज तक, जिस दिन मैं कैलकुलेट करूंगी उस दिन खर्चा करना वो छोड़ दूंगी क्योंकि मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी अगर मैं गोल्ड ले लेती हूँ, मैं ये ले लेती हूँ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ महसूस करते हो सुकून? तो जैसे हम यूजुअली सब लोग बोलते हैं ना कि जब हम बहुत पैसा कमा लेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम दान धर्म के कर्म करेंगे और हम कभी भी मर जाएंगे, हमको पता नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने जो भी डे टू डे लाइफ में जीती हूँ ना, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने कोई काम ऐसा, मतलब मुझे कोई ऐसा कॉन्शियस नहीं, अरे यहाँ पे डॉगी था मैंने उसको देखा नहीं, या एक बच्चा था मैं हेल्प कर सकती थी की नहीं, या ओल्ड आंटी मिली थी उसका दवाई का प्रॉब्लम मैंने किया नहीं। ऐसा सिचुएशन मेरे को कभी कोई रिग्रेट नहीं है। सो इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। दैट्स ग्रेट। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं नहीं पक्का, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह में। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਦਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੰਤੇਸ਼ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।